ओके, आवाज येतोय माझा? गुड मॉर्निंग, आवाज येतोय? थैंक यू सो मच. सो वी आर डीलिंग विद दोस्तों ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस that transport of oxygen, it occur by two ways. 97% of oxygen is transported by RBC in the form of oxyhemoglobin, where oxygen is bound with the iron of heme group of hemoglobin, and one hemoglobin carries 4 molecule of oxygen, maximum 4 molecule of oxygen. ये हमने देखा from lungs to the tissue, and remaining 3% of oxygen is transported in a dissolved form through the plasma. There is a concept of association, means attachment. There is a concept of association of oxygen with the hemoglobin. It occurs at the lungs level or alveolar level, and when that oxygen associated with the hemoglobin, then there is a formation of oxyhemoglobin. Now, what are the factors which are responsible for attachment of that oxygen with hemoglobin? What are the different factors which are responsible for formation of oxyhemoglobin? These are the four most important factor: increased partial pressure of oxygen, PO2, and decreased partial pressure of carbon dioxide, decreased H+ ion concentration, and decreased temperature. So these are the factors which are responsible for formation of oxyhemoglobin. And now that attachment of oxygen with hemoglobin is a reversible process. That oxyhemoglobin molecule is traveled or is transported through the blood, and it reaches the tissue. And when it reaches the tissue, the condition at the tissue level are exactly opposite, which are present at the alveolar level. And where do you know that at the tissue level oxygen is utilized continuously, so partial pressure of oxygen is decreased, and CO2 is produced continuously, that's why partial pressure of carbon dioxide is increased. And when carbon dioxide is increased, H+ ion concentration increases, and temperature is also increases at a tissue level, because there is a breakdown of glucose or breakdown of substances produces heat that increases temperature. And these conditions decrease the partial pressure of oxygen, increase the partial pressure of CO2, increase H+ ion concentration, and increase temperature. These are the factors which are responsible for dissociation of oxygen from the hemoglobin. And that oxygen is dissociated and get enter into the tissue, and where it is utilized for aerobic respiration. ये हमने देखा है. फिर हमने देखा दोस्तों, there is a concept of ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. हमने क्या देखा दोस्तों? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. और ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, इट इज अ सिग्मोइड, मींस एस शेप्ड कर्व होता है, दैट इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी प्लॉट परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. परसेंटेज सैचुरेशन कहां पे है? परसेंटेज सैचुरेशन होता है इस y एक्सिस के ऊपर, और x एक्सिस के ऊपर होता है PO2, मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. यह है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. और यहाँ पे दोस्तों परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HB हीमोग्लोबिन. और फिर ये कर्व आता है जिसका नाम है दोस्तों, उस कर्व का नाम है दैट इज हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. और ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, समटाइम इट शिफ्ट टू राइट. एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्ट टू राइट का मतलब होता है शिफ्ट टू राइट मींस नंबर वन थिंग, शिफ्ट टू राइट मींस दोस्तों देयर इज अ, याद रखो, देयर इज अ डिक्रीज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्रीज affinity of hemoglobin. There is a decreased affinity of hemoglobin for oxygen.
डिक्रीज एफिनिटी ऑफ हिमोग्लोबिन ऑक्सिजन, त्याच्यामुळे काय होतं, देर इज डिसोसिएशन ऑफ, उसकी एफिनिटी म्हणजे क्लोजनेस कमी होऊन जातो, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हिमोग्लोबिन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर हिमोग्लोबिन। और राइट, कैसे याद रखेंगे, राइट असं लक्षात ठेवा, ये टिश्यू लेवल पे होता है। शिफ्ट टू राइट कहां पे होगा, एट टिश्यू लेवल। शिफ्ट टू राइट क्या पे होता है, एट टिश्यू लेवल, क्योंकि वही तो ऑक्सीजन डिसोसिएट होना है। और फैक्टर्स फेवर शिफ्ट टू राइट, कौन से फैक्टर, फैक्टर्स फेवर्स शिफ्ट टू राइट, फैक्टर्स फेवर्स शिफ्ट टू राइट, फैक्टर्स फेवर्स that oxygen hemoglobin dissociation curve shift to right, and these factors are, what are these factors, these factors are, number one, these factors are दोस्तों, that is decreased partial pressure of oxygen and increased partial pressure of CO2, increased H plus ion concentration and increased temperature, MCQ, increased temperature। फिर कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, दैट इज, देन एक कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है दैट इज शिफ्ट टू लेफ्ट। एक कॉन्सेप्ट आएगा, उसका नाम है दोस्तों, मान लो शिफ्ट टू लेफ्ट। ओके, मैं जरा ये यहां से लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये होगा शिफ्ट टू राइट, बनाते हैं एक ग्राफ और वो है दोस्तों, मान लो शिफ्ट टू लेफ्ट। वो ग्राफ कौन सा है, मान लो वो हो जाएगा, सॉरी, शिफ्ट टू लेफ्ट। ना मान लो ये है शिफ्ट टू लेफ्ट, कहाँ गया, ये लेते हैं, ये हो गया मान लो शिफ्ट टू लेफ्ट। और ये शिफ्ट टू लेफ्ट चाहे कितना ही ले लो, इधर यहाँ पे जगह कम ही है, मुझे लगा ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एट कहाँ पे होता है, एट लंग्स लेवल, यल फॉर लंग्स और यल फॉर दोस्तों शिफ्ट टू लेफ्ट, यल फॉर लंग्स और यल फॉर शिफ्ट टू लेफ्ट। शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब होता है ये लेफ्ट साइड है कर्व की और ये राइट साइड है। और ये शिफ्ट टू लेफ्ट कब आ जाएगा दोस्तों, शिफ्ट टू लेफ्ट क्या करता है, डिक्रीजेस एफिनिटी ऑफ हिमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, क्या करता है, डिक्रीजेस एफिनिटी, क्लोजनेस, सॉरी आई एम सो सॉरी, इंक्रीजेस, यहां पे क्या होगा दोस्तों, इंक्रीजेस एफिनिटी ऑफ हिमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी बढ़ाएगा। त्याच्यामुळे काय होतं, देयर इज अ association of oxygen with hemoglobin, association of oxygen with hemoglobin, hemoglobin सोबत तो bind होईल। Now what are the factors which favor shift to, factors which favors shift to left, कोणते factors which favor shift to left, और वो है दोस्तों दैट इज increased partial pressure of oxygen and decreased partial pressure of CO2, decreased H plus ion concentration and decreased temperature। समझा लगला, these are the factor। MCQ, ये बहुत फेमस चार्ट है, ये बहुत फेमस चार्ट है, याद रखो, इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं, शिफ्ट टू लेफ्ट, शिफ्ट टू राइट। इज दैट क्लियर, नाउ इथे कॉन्सेप्ट आहे, लक्षात ठेवा, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बोहर्स इफेक्ट। नाउ व्हाट इज मीन बाय बोहर्स इफेक्ट, एंड दैट बोहर्स इफेक्ट ऑकर एट अ टिश्यू लेवल। याद रखो, बोहर्स इफेक्ट ऑकर एट अ टिश्यू लेवल। व्हाट इज बोहर्स इफेक्ट, that increased partial pressure of carbon dioxide or increased concentration of carbon dioxide promote the dissociation of oxyhemoglobin, त्याला म्हणायचं बोहर्स इफेक्ट। हे क्लियर आहे, show me thumbs up if this is clear, show me thumbs up if this is clear, show me thumbs up। ये कौन सा एक्सिस है भाई, ये कौन सा एक्सिस है दोस्तों, ये है वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस पे क्या है हमें पता होना चाहिए, ये क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। now बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बोहर्स इफेक्ट की।
नाउ क्या है बोहर्स इफेक्ट सर, बताओ हमें भी। बोहर्स ये क्या खुद का थोड़ा ही इफेक्ट है, बोहर्स नाम के एक साइंटिस्ट है, उनका इफेक्ट है। बोहर्स नाम के साइंटिस्ट है, उनका इफेक्ट है बोहर्स इफेक्ट। क्या है बोहर्स इफेक्ट, क्या है बोहर्स इफेक्ट? बोहर्स इफेक्ट कुछ इस तरीका है दोस्तों, मान लो दैट इज बोहर्स इफेक्ट दैट इज increased concentration of CO2, डायरेक्ट असंच बोलतो, पार्शियल प्रेशर बोला, increased concentration of carbon dioxide किंवा पार्शियल प्रेशर मध्ये बोलतो, increased partial pressure of carbon dioxide, partial pressure of carbon dioxide CO2 lead to increased partial pressure of carbon dioxide or CO2 lead to dissociation of oxyhemoglobin, dissociation means breakdown, dissociation of oxyhemoglobin into dissociation means breakdown into oxygen and hemoglobin, याला काय म्हणायचं, याला म्हणायचं बोहर्स इफेक्ट, याला म्हणायचं बोहर्स इफेक्ट, लक्षात ठेवा त्याला म्हणायचं बोहर्स इफेक्ट म्हणायचं, त्याला काय म्हणायचं बोहर्स इफेक्ट है, इसे कहेंगे बोहर्स इफेक्ट। ओके, इसे कहते हैं दोस्तों बोहर्स इफेक्ट, याद रखो बोहर्स इफेक्ट। इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड टू डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। नाउ क्या है, मान लो यह है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, यह है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, एक्चुअली यह है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ये है हीमोग्लोबिन, ओके, ये है हीमोग्लोबिन, ओके, ये हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन है, ओके, ये है हीमोग्लोबिन, और दोस्तों इसके साथ अटैच है ऑक्सीजन, इसके साथ कौन अटैच है, इसके साथ अटैच है ऑक्सीजन, इसके साथ अटैच है ऑक्सीजन, कौन है इसके साथ अटैच, इसके साथ अटैच है ऑक्सीजन, यह मान लो अपना ऑक्सीजन, वाह, यह मान लो अपना ऑक्सीजन। तो अगर ये ऑक्सीजन है तो यहाँ पे मान लो यह है अपना ऑक्सीजन, तो ये मॉलिक्यूल हो गया, ये हो गया दोस्तों ऑक्सीजन, दिस इज एन ऑक्सीजन, दिस इज एन हीमोग्लोबिन, और ये टोटल मिला के इसे कहते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो हो क्या रहा है, एट टिश्यू लेवल, एट टिश्यू लेवल हो क्या रहा है, ओके, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ओके, क्या हो रहा है, एट टिश्यू लेवल देयर इज इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहे हैं, there is increased concentration of CO2, there is increased concentration of CO2, so increased partial pressure of carbon dioxide, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है दोस्तों, एट टिश्यू लेवल there is increased level of carbon dioxide, what is this, this is दोस्तों CO2 है, ये क्या है सभी, ये क्या है सभी, ये है CO2, ये है CO2, ओके, ये है CO2, ओके, थोड़ा सा यह है CO2, ये थोड़ी स्माइली करेंगे, ये तो डेंजर होते हैं, ये है CO2, उनकी लेवल बढ़ गई है, उनकी लेवल बढ़ गई है, यह है CO2, ओके, ये है CO2, उनकी लेवल बढ़ गई है, ओके, तो अपने आप क्या होगा, ये तो बहुत खुश है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, कौन बोल रहा है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बोल रहा है, पर जब जब ये CO2 बढ़ेगा, जब जब ये CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा दोस्तों, तब तब क्या होगा, ये फिर हीमोग्लोबिन उसको क्या करना है, CO2 को भी टिश्यू से लंग्स तक लेके जाना है, तर ऑक्सिजन तर चांगल्या कामासाठी घेऊन आले हीमोग्लोबिन, कुठून लंग्स कडनं ना हो दोस्तों, ये क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है फिर यहाँ से there is a due to because of increased concentration, because of increased concentration दोस्तों, that oxygen is dissociated from hemoglobin, because of that increased concentration, because of that increased concentration दोस्तों, ये जो ऑक्सीजन है
that oxygen is dissociated from hemoglobin and इसे कहते हैं दोस्तों, ये हो गया association. This is an dissociation. Association, dissociation. Association means attachment. Dissociation means detachment. तो ये क्या है? Because of increased concentration of CO2, because of increased concentration of CO2, oxygen is dissociated from hemoglobin. और कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा दोस्तों? कहाँ जाएगा? Oxygen goes enter into the tissue. कहाँ जाएगा? ये जाएगा टिश्यू में और ये हीमोग्लोबिन हो गया खाली. तो ये जो हीमोग्लोबिन खाली हुआ है उसके साथ अटैच हो जाएगा कौन? अपना CO2. उसके साथ अटैच हो जाएगा अपना CO2 और कहां पे? एट द अमाइन ग्रुप ऑफ ग्लोबिन चेन, इसलिए उसका नाम है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन. सो दिस इज एन बोहर इफेक्ट. ये सब ये जो चल रही है जुगलबंदी बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन लोग हैं. सी इज हीमोग्लोबिन एंड वन, दो लोग हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है ऑक्सीजन. वो चाहती तो ऑक्सीजन को है, पर इस लेवल पे उसको पता है धर्म सबसे बड़ी बात है और उसका धर्म है जो बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में उसको बाहर फेंको. तो ऑक्सीजन को बोलती है मैंने तुझे तो लंग्स में से टिश्यू तक लाया है, अभी तेरा काम है कि टिश्यू में जाके एरोबिक रेस्पिरेशन करना, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना ताकि ज्यादा से ज्यादा एटीपी बने. 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं. तो जा तेरा काम कर, मैं निपटा लेती हूँ CO2 के साथ. और फिर वो CO2 अटैच हो जाता है अमाइनो ग्रुप ऑफ ग्लोबिन चेन और मॉलिक्यूल बन जाता है कार्ब हीमोग्लोबिन. और फिर ये हीमोग्लोबिन CO2 को लेके जाती है फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स और उसको छोड़ देती है बाहर. प्रत्येक मॉलिक्यूल आपला आपला धर्म परफॉर्म करतो प्रॉपर वे न, म्हणून आपण 70, 80, 90, 100 वर्ष जगू शकतो. एक दिवस जरी कंटाळा केला, एक दिवस जरी हिमोग्लोबिन कंटाळा केला की मला आज काम नाही करायचं, संपला. ओके, आर यू गेटिंग मी और नॉट? और ये सब देखा किसने? ये कहीं तो भी छिप छिप के कौन देख रहा था? ये छिप छिप के कौन देख रहा था? ये जो हो रहा है ये छिप छिप के देख रहे थे हमारे बोहर साहब. कौन देख रहा था? ये देख रहे थे हमारे बोहर, जिनका नाम है बोहर्स. और ये बॉडी में हो रहा है. उन्होंने कहा ये मेरा इफेक्ट है, ये मैंने देखा है फर्स्ट टाइम बॉडी में. ये देख रहे थे बोहर्स. ये बोहर्स जो है, ये जो क्या चल रहा है वो देख रहे थे. ओके, और फिर उन्होंने कहा ये है बोहर्स इफेक्ट. हट, ये थोड़ी आपका इफेक्ट है. आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग दैट पर्सन, बट ये हमारे बॉडी के अंदर होने वाला इफेक्ट है. और कहाँ होता है? एट टिश्यू लेवल. आर यू गेटिंग मी और नॉट? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं. ओके, डन. सो दोस्तों ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. नाउ अभी तो बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड. एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इनटू थ्री फॉर्म. it is transported into three form. लक्षात ठेवा. ये पहला ही MCQ आएगा. मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2. मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2. कॉलम 1 में परसेंटेज लिखता हूं और कॉलम 2 में लिखता हूं दोस्तों कि कौन सा है. सो याद रखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 1 नियरली 70%. कितना है दोस्तों? नियरली 70% ऑफ CO2. 70% of CO2 is transported. Nearly 70% of CO2 is transported as. Nearly 70% of CO2 is transported as दोस्तों, as transported as, याद रखो, as bicarbonate ion. As bicarbonate ion. Maximum transport जो होता है that is in the form of bicarbonate ion, that is HCO3 minus, that is HCO3 minus. 70% of CO2 is transported as a bicarbonate ion, that is HCO3 minus. Number 1. Number 2 दोस्तों, that is 20 to 25% of CO2. 20 to 25% of CO2 is transported by RBC. Is transported
is transported, it is transported by RBC, MCQ, red blood cell as carb amino hemoglobin, as a carb amino hemoglobin, where carbon dioxide is bind with amino group of globin chain and only, क्या बात है यार, अजय राखुंडे from Sukapuri district Jalna, if I'm not wrong. Now दोस्तों, that is only 7% of carbon dioxide, 7% of carbon dioxide is transported, okay, in dissolved form. It is transported in dissolved form, okay, via plasma. Via म्हणजे through, via plasma. 70% of CO2 is transported by bicarbonate ion. आणि सरांनी हे सगळं झाल्याच्या नंतर इथं लिहिलं होतं व्हाया, कॅपिटल मध्ये लिहिलं होतं, कॅपिटल मध्ये. तुम्ही पण लिहायचं व्हाया प्लाझ्मा. प्लाझ्मा थ्रू जात असतात बायकार्बोनेट आयन, नॉट थ्रू द आरबीसी. प्लाझ्मा थ्रू जात असतात, नॉट थ्रू द आरबीसी. व्हाया प्लाझ्मा, व्हाया म्हणजे थ्रू द प्लाज्मा. इज दैट क्लियर? ये मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 है, ये आपको आना ही चाहिए. यहाँ पे लो नोट लिखता हूं दोस्तों. डू यू नो दैट? नोट ये है कि solubility of carbon dioxide is higher than the oxygen. Solubility of carbon dioxide in blood. नोट कुछ इस तरीके का है और नोट कुछ ये कहता है दोस्तों, that is solubility of carbon dioxide is higher, is 20 to 23 times या फिर 20 to 25 times, okay, 20 to 25 times, okay, is solubility of CO2 is higher. डायरेक्ट कैसे लिखता हूँ? is higher solubility of CO2 in blood, solubility of CO2 in plasma या फिर blood, in plasma is higher than the oxygen. So that 7% of CO2 is transported in dissolved form and only 3% of oxygen is transported in dissolved form. So that 7% of carbon dioxide is transported in dissolved form, क्योंकि वो ज्यादा solubility है तो easily dissolve होता है. Dissolve form 7% of CO2 is transported in dissolved form compared to 3% oxygen, compared to 3% of oxygen, okay, which is transported in dissolved form, which is transported in dissolved form, Is that clear? Why the higher percent of carbon dioxide is transported in dissolved form as compared to oxygen? ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए. उसका आंसर ये है, solubility of carbon dioxide in plasma is higher than the oxygen. ये क्लियर है? Therefore diffusion of gas is higher in CO2 than oxygen. बहुत बढ़िया. रसिका साउजी AIB 1050, थैंक यू. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्रिस्टल क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. अभी जो स्टोरी आप सुनोगे, मेरे पास टाइम है तो देखो क्या होता है दोस्तों. डू यू नो दैट सपोज दीज आर द टिश्यू, ओके, दीज आर द टिश्यू. आता जरा लेट लक्ष द्या काय झालं. बर, त्याच्या पण अगोदर एक कॉन्सेप्ट सांगतो. त्याच्या पण एक अगोदर एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करतो. दॅट इज action of an enzyme, ज्याचं नाव आहे कार्बोनिक अनहाइड्रेज. त्या एन्झाईमचं काय नाव आहे? कार्बोनिक अनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम. चलो देखो ये क्या करता है. कार्बोनिक अनहाइड्रेज हे एंजाइम काय करतो? लक्षात ठेवा.
ओके, ये जो एंजाइम है दोस्तों, मोस्टली ये जो एंजाइम है, बगा जरा क्या बोलता हूं, मोस्टली it is, ये जो एंजाइम मोस्टली इट इज प्रेजेंट इन MCQ, मोस्टली इट इज प्रेजेंट in red blood cell, mostly it is present in red blood cells, and rarely it also found in plasma. हर टॉपिक से वन ऑफ द बेस्ट सेंटेंस ले लेनी है। मोस्टली ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज कहां पे, आरबीसी में है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज आरबीसी में होता है, याद रखो, मोस्ट ऑफ देम, एंड रियरली इट इज आल्सो फाउंड इन प्लाज्मा। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है इस टॉपिक का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैंने लिखा है। तो ये क्या करता है, ये जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज है दोस्तों, ये काम क्या करता है, तो ये एट टिश्यू लेवल एक अलग काम करता है और एट लंग्स लेवल एक अलग काम करता है। ये रिवर्सिबल एंजाइम है, इट इज एन रिवर्सिबल एंजाइम, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है ये जो है दोस्तों, फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ वर्ल्ड। इससे फास्ट एंजाइम अभी तक बना नहीं है। एट टिश्यू लेवल क्या करता है दोस्तों, टिश्यू लेवल ये क्या करता है, एक क्या करता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जब आरबीसी में जाएगा, तो आरबीसी एक सेल है, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में होता है वाटर। और दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की बन जाती है दोस्ती, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की बन जाती है दोस्ती। सो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों कंबाइन होता है वाटर के साथ आरबीसी में। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइन हो रहा है, वाटर के साथ। पर जो भी एक प्रोडक्ट बनता है, उनका वो प्रोडक्ट इतना असरदार नहीं होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, और उस प्रोडक्ट का नाम है H2CO3। इसका नाम है उस प्रोडक्ट का H2CO3, याला माहिती कार्बोनिक एसिड। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। और ये जो कार्बोनिक एसिड है ना, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। ये जो कार्बोनिक एसिड है ना, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये अनस्टेबल है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। क्या नाम है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। कार्बोनिक एसिड तैयार करायले बाय यूजिंग वाटर एंड CO2, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। तो ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड बन गया। तो फिर ये जो है कार्बोनिक एसिड, ये जो बन गया दोस्तों कार्बोनिक एसिड, ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है। फिर से ये ब्रेकडाउन होता है किसमें, ये ब्रेकडाउन होता है किसमें, बाइकार्बोनेट आयन एंड H+ में। देखते क्या है, तो फिर से वही एंजाइम है, सेम एंजाइम, उसका नाम है वही एंजाइम दोस्तों, क्या नाम है, वही एंजाइम, वही एंजाइम है। ओके, ये हो गया अनस्टेबल। तो एंजाइम वही है, एंजाइम का नाम है दोस्तों दैट इज कार्बोनिक अनहाइड्रेज। नाउ दिस कार्बोनिक अनहाइड्रेज causes the breakdown of this carbonic acid into bicarbonate ion and H+ ion into HCO3 बघा, एक हायड्रोजन निघून गेलाय, H2CO3 म्हणजे कार्बोनिक एसिड, H2CO3 म्हणजे कार्बोनिक एसिड, एक हाइड्रोजन निकल गया है, मींस प्रोटॉन निकल गया है, H+ आयन निकल गया है, तो HCO3 माइनस आ जाएगा, HCO3 माइनस प्लस दोस्तों प्लस, दैट इज प्रोटॉन और H+ आयन। और ये जो बना है इसे कहते हैं HCO3 माइनस, क्यों, क्योंकि एक प्रोटॉन चला गया, एक पॉजिटिव चार्ज चला गया है, इसे कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन। ये है दोस्तों बाइकार्बोनेट आयन। और ये सब कहां पे हो रहा है, आरबीसी में हो रहा है, आरबीसी में, कैपिलरी, टिश्यू कैपिलरी में, एट टिश्यू कैपिलरी, ओके, एट टिश्यू लेवल इन। दोस्तों आपने कभी हॉलीवुड का मूवी देखा होगा, ओके ओके, तो जब कोई मूवी है तो वहां आता है समवेयर इन मिडल ईस्ट एशिया, ओके, तेहरान शहर, इजिप्ट, ऐसा कुछ तो आएगा, ओके।
जकार्ता शहर इंडोनेशिया. ओके, समवेअर इन अंटार्क्टिका. आता है या नाही? असं येतं का नाही? लक्षात. मग तुम्ही काय होईल का? सो दोस्तों, समवेअर इन टिश्यू कैपिलरीज, समवेयर इन टिश्यू कैपिलरीज. और ये रिएक्शन हो रही है समवेयर इन टिश्यू, एट टिश्यू, इनसाइड द टिश्यू कैपिलरीज, समवेयर इन एम्स. क्या बात है, आपकी स्टोरी जब बनेगी तो समवेयर इन दिल्ली. तसं नाही ना, डायरेक्ट कहना ना. ओके, जब आपकी स्टोरी बनेगी, बड़े डॉक्टर बनोगे, तो ऐसा आ जाएगा एम्स न्यू दिल्ली, और आपका कॉलेज का लाइफ क्या पता ऐसे भी हो सकता है. इन टिश्यू कैपिलरीज ये हो रहा है दोस्तों, और बन रहा है बायकार्बोनेट आयन. और टिश्यू कैपिलरी के भी आरबीसी में ये रिएक्शन होता है. आरबीसी मध्ये पण ही रिएक्शन होईल आणि प्लाझ्मा मध्ये पण होईल, कारण की ते एंजाइम दोन्हीकडे पण जास्त आहे. पण कुठे जास्त आहे? कार्बोनिक अनहाइड्रेज. अगर पूछा किसी ने आपको, ये एमबीबीएस में भी आ सकता है ना, फिजियोलॉजी में है ना, उसने कहा कि कार्बोनिक अनहाइड्रेज, where the higher concentration of carbonic anhydrase is present, is it RBC or plasma? तो आपने बोलने का सर, carbonic anhydrase is largely present in RBC. Rarely it is present in plasma. Okay. Okay. Now please, उसको भी, वो जो आपका एग्जामिनर है फर्स्ट ईयर का, उसको भी याद रहेगा लाइफ टाइम. आगे बढ़ते हैं. तो टिश्यू लेवल पे क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो है दोस्तों, ये तो हो गया टिश्यू लेवल पे, समवेयर इन टिश्यू, समवेयर इन टिश्यू. नाउ बात करते हैं समवेयर इन लंग्स. ओके, एट लंग्स लेवल और अल्वेओलार लेवल पे काम क्या करता है, चलो बात करते हैं दोस्तों. अल्वेओलाई लेवल पे काम क्या करेगा? एट अल्वेओलाई, एट अल्वेओलार लेवल, विदिन और इन अल्वेओलार कैपिलरी और पल्मोनरी कैपिलरी, या फिर उसे पल्मोनरी कैपिलरी भी बोला जा सकता है. तो वहां पे क्या करता है ये सब पूरा, वहां पे तो ये बाइकार्बोनेट प्लाज्मा थ्रू, फिर ये बाहर आता है बाइकार्बोनेट आरबीसी से, और प्लाज्मा के थ्रू वो कहां पे जाता है? लंग्स की तरफ. फिर हम थोड़ी बाइकार्बोनेट आयन बाहर फेंकते, ये थोड़ी बाइकार्बोनेट आयन बाहर आया, बाहर तो CO2 आने वाला है. बाहर जो हम एक्सपायर करते हैं एयर, उसे जो एयर हम एक्सपायर्ड एयर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. और प्लाज्मा थ्रू क्या आ रहा है? लंग्स की तरफ, बाइकार्बोनेट आयन. तो ये पूरा उल्टा रिएक्शन होता है, ये पूरा उल्टा रिएक्शन होता है. मैं आपको समझाता हूं. ये रिएक्शन कुछ ऐसा होता है दोस्तों, दैट इज CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर प्लस, आता हे असं उलट चाललं, कार्बोनिक अनहायड्रेट. जरा लक्ष द्या रे, अनहायड्रेट रिएक्शन फक्त समजून बघू ना कोणी. 2 मिनिटं डोळे बंद करा, 2 मिनिटं बघू नका. 20 सेकंदाचा रेस्ट घ्या, थोडासा रेस्ट घ्या 20 सेकंदाचा. बघू नका कोणी, दाखवतो थोडस, बघू नका. रेस्ट घ्या. उघडा डोळे बघा नीट, आणि हे बी देशात हिट ना. उघडा डोळे आणि बघा नीट मुलांनो, काय व्हायला लागली? दॅट इज बायकार्बोनेट आयन. बायकार्बोनेट लंग्स लेवल, ये उल्टा होता है. बायकार्बोनेट आयन कंबाइन विथ H+, सेम एंजाइम है, इट इज अ रिवर्सिबल एंजाइम, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, and convert that bicarbonate ion and H+ ion into carbonic acid, and again that carbonic acid into water and CO2, water and CO2, water and CO2. और ये CO2 फिर ये CO2 फिर बाहर फेंका जाएगा into एटमॉस्फेरिक एयर. ये ऐसा होता है दोस्तों. ये जो कार्बोनिक एंड फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ वर्ल्ड, एंड इट इज रिवर्सिबल एंजाइम. रिवर्सिबल एंजाइम लक्षात ठेवा, रिवर्सिबल एंजाइम है. मतलब फास्टेस्ट एंजाइम का म्हणलेलं आहे, हे क्लियर है का? वाटर कहाँ जाता है? आरबीसी में ही रहेगा वाटर.
साइटोप्लाज्म है ना आरबीसी में, तो वही रहेगा आरबीसी में. हे तर एक स्टोरी सांगितली हो, ही फक्त स्टोरी आली आहे, पिक्चर तो अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, पर टाइम खत्म हुआ है, कल पिक्चर देखेंगे पूरा, अभी तो ट्रेलर है. पर ये याद रखो, ये फास्टेस्ट एंजाइम क्यों कहा गया मैंने इसे, व्हाई इट इज कॉल्ड द फास्टेस्ट एंजाइम. मैं आपको बताऊं व्हाई इट इज कॉल्ड द फास्टेस्ट एंजाइम, ये सुनाता हूं, क्योंकि ये दिया है टॉपिक बायोमोलिक्यूल में, ये दिया है टॉपिक बायोमोलिक्यूल में, व्हाई इट इज फास्टेस्ट एंजाइम. कोई मुझे बता सकता है? अरे 9.45 तक है टाइम, थैंक यू आयुष सोनी. तो आज ही पिक्चर शुरू कर देते हैं. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड द फास्टेस्ट एंजाइम. ओके, ये क्लियर है, ये क्लियर है या नहीं? ओके, फर्स्ट फॉर्मूला, इज इट कार्बोनिक अनहाइड्रेज, अनहाइड्रेजेस, अरे अनहाइड्रेट झालं का, सॉरी, ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज है, सॉरी सॉरी सॉरी, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम, एंजाइम है ना, तो ASE से एंड होगा, ASE, कार्बोनिक अनहाइड्रेज. क्लियर है? क्लियर आहे का? क्लियर आहे? आता जरा लक्ष द्या. हा, ते पण अनस्टेबलच आहे, इकडे पण अनस्टेबलच आहे, हे पण अनस्टेबलच आहे, लिहिलं नाही म्हणून काय झालं, हे मॉलिक्यूलच अनस्टेबल आहे दोन्ही आभाराचं. काही लोक अनस्टेबल ते अनस्टेबल असतात. क्लियर आहे? लक्षात ठेवा, मी बोललोय एका एन्झाइम बद्दल, त्याचं नाव कार्बोनिक अनहाइड्रेज, आणि त्याचे ऍक्शन ऍट अ टिश्यू लेवल अँड ऍक्शन समवेयर इन अल्वेओलाई, समवेयर इन टिश्यू, समवेयर इन अल्वेओलाई. आगे बढ़ते दोस्तों, ये मैंने क्यों कहा कि ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज फास्टेस्ट एंजाइम है. ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है दोस्तों, याद रखो, ये जो रिएक्शन है विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम, जरा लक्ष द्या, रिएक्शनचं नाव आहे फॉर्मेशन ऑफ carbonic acid, formation of carbonic acid from carbon dioxide and water, formation of carbonic acid from carbon dioxide and water without enzyme. जर बघितलं तर मुलांनो, CO2 प्लस वाटर विदाउट एंजाइम, कोई भी एंजाइम नहीं है, तो ये फिर भी कंबाइन होते हैं. और जो दोस्तों ये जो है यहाँ पे जरूर बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा H2CO3, क्या बनेगा? H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड, आपको पता है इस व्हाट इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन मतलब है हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, उसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. याद रखो, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम. तो दोस्तों रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एंजाइम, कोई भी एंजाइम नहीं है, नो एंजाइम, कोई भी एंजाइम नहीं है, तो दोस्तों दैट रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन मींस हाउ मेनी प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम. तो दोस्तों यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है, कोई गेस कर सकता है? 106 मॉलिक्यूल, गलत. हर्षदा बोर्डे, गलत. सोनी, गलत. तो दोस्तों 200 मॉलिक्यूल बनेंगे, सिर्फ 200 मॉलिक्यूल पर क्या, ईयर, मंथ, वीक, डे, आवर, मिनट, सेकंड, क्या, पर मिनट, ओके, पर मिनट, आवर बोलो. ये पर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हमेशा याद रखो, दैट पर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट पर इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं, हमें लगता है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, याद रखो. ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, तो याद रखो. क्या होगा ये, क्या होगा, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज 200 मॉलिक्यूल पर ईयर, मंथ्स, वीक्स, डेज, आवर्स, मिनट, सेकंड, कितना लिखो पर आवर. MCQ. अगर मैं यही रिएक्शन करूं विथ एंजाइम, यही रिएक्शन दोस्तों विदाउट एंजाइम एंड विथ एंजाइम, और एंजाइम का नाम है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज. तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हो जाएगा, दैट इज
CO2 plus water, CO2 plus water in presence of enzyme carbonic anhydrase, in presence of enzyme carbonic anhydrase. Okay, it is mostly present in RBC. ये है carbonic anhydrase that lead to दोस्तों, that lead to formation of that is H2CO3. तो ये क्या हो गया, ये हो गया कार्बोनिक एसिड. नाउ कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन हियर विथ एंजाइम? यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है दोस्तों, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, कोई मुझे बता सकता है? कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, आप बोलो कितना है? 200 मॉलिक्यूल पर मिनट. अरे इतना कम मत सोचो रे. ओके, बहुत बढ़िया. 6 लाख मॉलिक्यूल बनते. कितने? 6 लाख. 1 2 ओके, 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे. मॉलिक्यूल्स पर अभी क्या है? अभी पर चेंज हुआ है. अभी क्या है? पर सेकंड. एमसीक्यू टॉपिक बायोमॉलिक्यूल. दैट्स व्हाई ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है. आर यू गेटिंग मी नाउ? एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ एंजाइम. इनडायरेक्टली मैंने बोल दिया एंजाइम काम कैसे करते थे. इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ एनर्जी एक्टिवेशन? बात करेंगे टॉपिक बायोमॉलिक्यूल में. एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसे लगेगी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. डू यू नो दैट you people are substrate right now, and when you enter into the MBBS first year or when you enter into the first year medical college, now you are the product, but right now you are the substrate. You have to, and there is one transition state between the substrate and product. हमेशा याद रखो, ये substrate है तो ये है दोस्तों उसका प्रोडक्ट. ये ऐसे डायरेक्ट थोड़ी बनता है, नहीं. यहाँ पे एक स्टेट आती है, उस स्टेट का नाम है ट्रांजिशन स्टेट. और ट्रांजिशन स्टेट तक जाना पड़ता है पहले दोस्तों, फिर अपने आप प्रोडक्ट बनता है. और हमें ऐसा चाहिए, सबस्ट्रेट से हमें ऐसा प्रोडक्ट बनना है. आप हो 12th साइंस स्टूडेंट और ये है मेडिकल साइंस स्टूडेंट. प्रोडक्ट आपको सीधा जाना है, गलत. आपको पहले खुद को एक्टिवेट करना पड़ेगा और ट्रांजिशन स्टेट की तरफ लेके जाना पड़ेगा. अपने आप आपका प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाए, आपका अपने आप आपका कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो जाएगा. और प्रोडक्ट क्या है? एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. इसके लिए लगती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. इसके लिए लगती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. काम करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा. और एंजाइम क्या करते हैं? वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थोड़ा सा कम कर देते हैं. ओके, और वो एंजाइम से आपके टीचर्स, वो एंजाइम से आपके पेरेंट्स, वो एंजाइम से आपके जो भी हितचिंतक लोग, वो आपके लिए एंजाइम जैसा काम करते हैं. आपकी एनर्जी, आपका हार्डवर्क थोड़ा सा कम करते हैं, आपको हेल्प करते हैं. अगर एंजाइम रहा दोस्तों, अगर एंजाइम रहा तो ये यहाँ पे ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. इतनी एनर्जी लगती है, ठीक है. विदाउट एंजाइम, अगर एंजाइम रहा तो कम एनर्जी में भी काम होता है. एंजाइम डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. काय मोठा कॉन्सेप्ट बोललोय, तुम्हाला किती लोकांना कळाला आय डोंट नो, पण हे जबरदस्त कॉन्सेप्ट आहे. आर यू गेटिंग मी और नॉट? आर यू गेटिंग मी और नॉट दोस्तों? ओके, यस, आय नो दॅट. मला तुम्हाला कळायला लागलंय मला काय बोलायचं. तो एन्झाइम ह्या ट्रान्झिशन स्टेटला जाणारी जी एनर्जी लागते ती कमी करतात, म्हणून फास्ट सबस्ट्रेटचं प्रोडक्ट होतं. रिपीट करायची गरज नाही जर का तुम्ही प्रामाणिकपणे काम केलं तर. चलो आगे बढ़ते हैं. सो ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज इज द फास्टेस्ट एन्झाइम इन वर्ल्ड. हे दोन्ही पण आकडे लक्षात ठेवा. एमसीक्यू एमसीक्यू. फॅक्च्युअल गोष्टी म्हणतात ह्याला, फैक्चुअल थिंग्स. इसे टैलेंट की नहीं, इसे मल्टीपल रीडिंग की जरूरत होती है. जितने भी फैक्चुअल थिंग्स है उसे टैलेंट की नहीं तो मल्टीपल रीडिंग की जरूरत होती है. इज दैट ओके? ओके ओके, चलो, थैंक यू श्रीकांत. आगे बढ़ते हैं और बात करते. एक स्टोरी सुनाता हूँ दोस्तों. हा, जरा लक्ष द्या. आता काय सांगतो, मराठीतून सांगतो, नंतर हिंदीत पण बोलतो. काय आहे आता, थोडस वेळ झालं तरी थांबा, वेळ आहे आपल्याकडे. जायचं नाही कोणी, जायचं नाही. स्टोरी कंप्लीट करतो. जास्त काही मोठी नाही, छोटी स्टोरी. जरा लक्ष. व्हाट आर दिस आर द दोस्तों टिश्यू. ये क्या है? ये है टिश्यू. ये है टिश्यू. हे आहे टिश्यू. समजून घ्या, हे आहे टिश्यू.
Now हे आहे टिश्यू, हे काय आहे, ये है कैपिलरी। ये क्या है दोस्तों, ये है कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, ये है ब्लड कैपिलरी, ये है ब्लड कैपिलरी। क्या है ब्लड कैपिलरी, हे ब्लड कैपिलरी। बरं आता तुम्ही मला सांगायचं हे काय, मी तुम्हाला नाही सांगणार, तुम्ही मला सांगायचं ब्लड कॅपिलरी मध्ये एक फ्लुइड आहे, ब्लड कॅपिलरी मध्ये एक फ्लुइड आहे, तुम्ही मला सांगायचं ते फ्लुइड काय आहे। ब्लड कैपिलरी में एक फ्लूइड है, तुम्हें मला सांगायचं ते फ्लूइड काय है, ये क्या है, ये कौन सा फ्लूइड है, तो ब्लड कैपिलरी में फ्लूइड है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, बोलो ये कौन सा फ्लूइड है, ये कौन सा फ्लूइड है, व्हाट इज दिस, ये है प्लाज्मा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, ये है प्लाज्मा, बहुत ही सुंदर, ये है प्लाज्मा। ओके, ये है प्लाज्मा। नाउ तो दोस्तों ये क्या है, ये बोलो व्हाट इज दिस, ये क्या है, आपको क्या लगता है ये क्या होगा, ये कौन सी सेल होगी, ये कौन सी सेल है बड़ी वाली, ये कौन सी सेल है इतनी बड़ी, इस सेल का नाम क्या है, आपको क्या लगता है, ये कौन सी सेल होगी जो ज्यादा ही बड़ी हो गई है, इसका नाम क्या है, आपको क्या लगता है ये कौन सी सेल होगी दोस्तों, ये कौन सी सेल है, इसका नाम है, रेड कलर है मतलब इसका नाम है आरबीसी, इसका नाम क्या है, ये है आरबीसी। आता जरा नीट लक्ष द्या, आता जरा लक्ष द्या, स्टोरी ही आहे आरबीसी, ती आहे आरबीसी, हे काय आहे, ही आहे आरबीसी, ही आहे आरबीसी, ही आहे आरबीसी आणि हा आहे प्लाझ्मा, ती आहे आरबीसी आणि तो आहे प्लाझ्मा, किंवा ही आहे आरबीसी आणि हा आहे प्लाझ्मा, ही स्टोरी आहे ही आणि हाची, हा आहे प्लाझ्मा, ही स्टोरी एका मुलीची आणि एका मुलाची, ही आहे आरबीसी किंवा ती आहे आरबीसी, हा आहे प्लाझ्मा। होतं काय, आणि हे इकडे आहेत, हे आहेत टिश्यू, ह्या टिश्यू मध्ये CO2 तयार होतो, ह्या टिश्यू मध्ये CO2 तयार होतो, इकडं CO2 तयार व्हायला, इकडं CO2 तयार व्हायला, आणि इकडं पण CO2 तयार होत आहे। बर, आता एक एक गोष्ट बोलूया, एक एक गोष्ट बोलूया, लक्षात ठेवा, हा जो CO2 आहे समजा हा प्लाझ्मा मध्ये गेला, असं कन्सिडर करूया 7% ऑफ CO2, ओके, हा आहे 7% CO2, 7% CO2 दॅट इज डिझॉल्व फॉर्म मध्ये जाणार आहे, हा प्लाझ्मा मध्ये जाणार आहे, डिझॉल्व फॉर्म मध्येच, डिझॉल्व फॉर्म मध्ये 7% CO2 डिझॉल्व CO2। आता हा जो CO2 एंटर करतोय आरबीसी मध्ये, हा CO2 ज्यावेळेस त्याने आरबीसी मध्ये एंटर केलेला आहे, ह्या CO2 ने ज्यावेळेस आरबीसी मध्ये एंटर केलं, जरा लक्ष द्या, हा CO2 आरबीसी मध्ये आलाय, हा जो CO2 याने आरबीसी मध्ये एंटर केलाय, ओके, आणि आरबीसी मध्ये आल्याच्या नंतर हा CO2, लक्षात, ते एंजाइम जो है, जो एंजाइम है दोस्तों जिसका नाम है, जिस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ज्यादा वो आरबीसी में है, तो ये CO2 जब आरबीसी में आता है, तो सपोज मान लो ये है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, नाउ प्लीज पे अटेंशन, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद दोस्तों दिस कार्बन डाइऑक्साइड, this carbon dioxide combine with this carbon dioxide combine with water to form this carbon dioxide combine with water दोस्तों in presence of enzyme carbonic anhydrase to form that is H2CO3 to form H2CO3, हे शिकवलं मी तुम्हाला सगळं,
इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, उसका नाम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। तो एंजाइम का नाम क्या है? कार्बोनिक अनहाइड्रेज। अनहाइड्रेज। और फिर ये तो बहुत ही अनस्टेबल है, इससे फिर दोस्तों ब्रेकडाउन होके बनता है, इससे ब्रेकडाउन होके दो चीजें बनती है, इससे ब्रेकडाउन होके दोस्तों बनता है बाइकार्बोनेट आयन NH+ आयन। फिर से वही एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ओके, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, और ब्रेकडाउन होके बना है दोस्तों दैट इज बाइकार्बोनेट आयन, जिसका नाम है HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन एंड H+, बाइकार्बोनेट आयन एंड H+। ये सिचुएशन है। ये कितना है? अब ये सब क्या है? आरबीसी में चल रहा है नाउ, और कुछ CO2 नियरली अबाउट, ये जो CO2 दोस्तों मान लो ये CO2, ये जो CO2 है, ये जो CO2 है, सो 20 to 20% ऑफ CO2 कितना है दोस्तों? दैट इज 20 to 25% ऑफ CO2, 20 to 25% ऑफ CO2, ओके। CO2 कितने कौन से फॉर्म में जाता है? दैट इज कार्ब अमाइनो हिमोग्लोबिनच्या फॉर्म मध्ये जातो, कार्ब अमाइनो हिमोग्लोबिन। मग हा CO2 कुठं कंबाईन झालेला आहे? हा हिमोग्लोबिन सोबत कंबाईन झालेला आहे। याला कसं दाखवू मी आता? हा जो CO2 तो त्या फॉर्म मध्ये चाललाय, ओके। 20 आणि कुठं कंबाईन झालाय? आरबीसी मध्ये हिमोग्लोबिन आहे त्याच्यासोबत कंबाईन झालाय, दैट इज दोस्तों ये कुछ ऐसा दिख रहा है, दैट इज HbCO2। क्लियर है? 7% डिझॉल्व फॉर्म मध्ये चाललाय, 7% जो CO2 आहे तो डिझॉल्व फॉर्म मध्ये चाललाय, 7% ऑफ CO2 तो डिझॉल्व फॉर्म मध्ये चाललाय वाया प्लाझ्मा, वाया प्लाझ्मा, वाया प्लाझ्मा। हा आहे प्लाझ्मा, हा आहे प्लाझ्मा। आणि 20 to 25% ऑफ कार्बन CO2 HbCO2 is transported in कार्बन एंड हीमोग्लोबिन फॉर्म। तेरा क्या होगा बाइकार्बोनेट? आप मुझे बोल दो। तो बाइकार्बोनेट बना किस में? आरबीसी में या प्लाज्मा में? बनता तो दोनों में है, ज्यादा किस में बना? ज्यादा किस में बना? बाइकार्बोनेट आयन बना किस में? कुठं बनलाय? आरबीसी मध्ये। इसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? इसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? आरबीसी या प्लाज्मा? यही तो कैच है। मैंने कैच फेंका है आपको, एक बॉल ऊपर गया है और मैंने क्वेश्चन पूछा है दैट बाइकार्बोनेट आयन इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड थ्रू आरबीसी और प्लाज्मा। बहुत सारे मैंने लिखा था कैपिटल में, बहुत सारे लोगों को लगता है ये पढ़ने के बाद आरबीसी, नहीं, आंसर इज प्लाज्मा। आता स्टोरी आहे का काय? ही आहे, लक्षात ठेवा। वाव, ये है दोस्तों, ये है अपनी आरबीसी। ये क्या है? ये है अपनी आरबीसी। ही बघा आरबीसी, ही आहे आरबीसी। ही जी आरबीसी है, ओके, ये है आरबीसी, ओके, ही आरबीसी आहे आणि हा आहे आपला प्लाझ्मा। हा काय? हा जो आपला, हा आहे प्लाझ्मा, ओके, हा आहे प्लाझ्मा। वाव, हा आहे अपना प्लाझ्मा, हा आहे प्लाझ्मा आणि ही आहे आरबीसी। मग आरबीसी प्लाझ्माला म्हणते ए ऐकणार आहे प्लाझ्मा, हा तर रेडीच आहे, हा बोल ना आरबीसी काय काम, बोल। ऐक ना, हा जो बायकार्बोनेट आयन तयार झाला ना, तू तो घेऊन जातोस का? मी बघणार आहे, मी ना ऑक्सिजन घेऊन जाते 97% इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हिमोग्लोबिन, आणि पुन्हा कार्बन डायऑक्साइड पण घेऊन जाते इन द फॉर्म ऑफ कार्बन हिमोग्लोबिन, दॅट इज 20 to 25%। ठीक आहे, तू काहीच ऑक्सिजन घेऊन जाऊ शकत नाही, जात नाही। प्लीज हा बायकार्बोनेट तू घेऊन जा ना प्लाझ्मा, प्लीज प्लीज। एवढं म्हटल्यानंतर काय प्लाझ्माची हिंमत आहे नाकार द्यायची? तुम्हाला काय वाटतंय? प्लाझ्मा नाही म्हणाल? प्लाझ्मा हो, त्यात काय, लगेच घेऊन जातो, दे पाठवून माझ्याकडे, ठीक आहे, दे पाठवून। आरबीसी लगेच काय करते? लक्षात ठेवा, लगेच ह्या बायकार्बोनेटला, वाव, आरबीसी काय करते? हा जो बायकार्बोनेट आयन आहे, लक्षात ठेवा, ह्या बायकार्बोनेट आयनला एक चॅनल असतात, ह्या चॅनलद्वारे
लगेच ती कुठं पाठवते, प्लाझ्माकडे. हे जे बायकार्बोनेट आयन आहेत, ह्या बायकार्बोनेट आयनला ती कुठं पाठवते, प्लाझ्माकडे. जरा लक्ष द्या, कुठं पाठवते, हा आहे प्लाझ्मा. आणि ह्या बायकार्बोनेट आयन, लक्षात ठेवा, बायकार्बोनेट आयन मूव्ह व्हायला लागलेत कुठून, दॅट इज फ्रॉम आरबीसी टू प्लाझ्मा, फ्रॉम आरबीसी टू प्लाझ्मा, दॅट इज HCO3 HCO3 मायनस, HCO3 मायनस, असा तो बायकार्बोनेट जातो प्लाझ्मामध्ये. आणि व्हाया प्लाझ्मा इट इज ट्रान्सपोर्टेड अप टू द, व्हाया प्लाझ्मा इट इज ट्रान्सपोर्टेड अप टू द लंग्स. मग आरबीसी खुश होऊन जाते, प्लाझ्मा पण खुश, चला आपल्याला कोणीतरी काम सांगितलंय, ते पण आरबीसी. ओके, त्याच्या सर्वात आवडती सेल आहे, 3 सेल आहे त्याच्याकडे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट. आणि सर्वात आवडती आरबीसी, तिने मला काम सांगितले. काय प्लाझ्माची हिंमत नाही म्हणायची. प्लाझ्मा रेडी झाला, लगेच आरबीसी त्याला म्हणाले थँक्यू. आणि काही वेळानंतर ती म्हणली, अरे प्लाझ्मा ऐक ना. तो म्हणते, बोलणार आहे आरबीसी, अरे तू बायकार्बोनेट आयन घेऊन गेलास त्याबद्दल तर खरंच थँक्यू, पण माझा ऑस्मोटिक बॅलन्स बिघडलं रे, खूप सारे निगेटिव्ह आयन बाहेर गेलेत माझे. ठीक आहे, माझा ऑस्मोटिक बॅलन्स बिघडले, अनायन मला गरज आहे रे अनायनची. तुझ्याकडे बघ ना, कोणी अनायन आहे का तुझ्याकडे, फिजिक्सचं जर्नल आहे का तुझ्याकडे? ओके, दे ना असेल तर. तसं ती म्हणाली, अनायन आहे का तुझ्याकडे, दे ना रे अनायन, माझं खूप सारे अनायन गेले तुझ्याकडे इन द फॉर्म ऑफ बायकार्बोनेट. हा आहे ना, माझ्याकडे क्लोरीन आहे ना, क्लोरीन. ओके, घेऊन जा ह्या क्लोरीनला. मग काय व्हायला, लक्षात ठेवा, मग काय व्हायला लागले. आणि लगेच मग ह्याच्यामुळं काय व्हायला लागले, हे याच्या बदल्यात ती काय करते, काय स्वार्थी हे आरबीसी, त्याच्या बदल्यात, लक्षात ठेवा, त्याच्या बदल्यात ती काय करते, प्लाझ्मा कडनं Cl मायनस आयन घेते, दॅट इज क्लोरीन आयन. and this concept is called as a chloride shift that occur at a tissue level. This concept is called as a chloride shift. लक्षात ठेवा, स्टोरी समजली नाही, संपल नाही आणखी. This concept is called as a chloride shift where RBC transport bicarbonate ion, or there is a transport of bicarbonate ion from RBC into the plasma, and there is a return or transport of chloride ion, or there is a shift of chloride ion from plasma into the RBC to maintain the ionic balance of RBC. ये होता है दोस्तों क्लोराइड शिफ्ट. और ये किसने देखा, ये सब जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी है आरबीसी और प्लाज्मा की, एक साइंटिस्ट है जो देख रहे थे, उनका नाम है हमबर्गर. कौन सा बर्गर? ओके, कौन सा बर्गर? मैगडी वाला नहीं, उनका नाम है हमबर्गर. उनका नाम है दोस्तों हमबर्गर. और उन्होंने कहा इट इज एन हमबर्गर फिनोमिनॉन. अरे हट, हमबर्गर फिनोमिनॉन थोड़ी है, हमारे बॉडी में होने वाला फिनोमिनॉन है. पर रिस्पेक्ट, आपने देखा तो सही है, आपने दुनिया को बताया, दैट इज हमबर्गर फिनोमिनॉन इन विच आरबीसी ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट आयन टू द प्लाज्मा एंड इन रिटर्न टेक द क्लोराइड आयन इनटू द आरबीसी. इसे कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट और हमबर्गर फिनोमिनॉन ऑकर एट ए टिश्यू लेवल. सो दोस्तों, फिर से आपसे एक सवाल है, दैट बाइकार्बोनेट आयन, that 70% of carbon dioxide is transported in the form of bicarbonate ion and it is transported through the plasma or RBC. अब बोलो, प्लाज्मा और आरबीसी क्या है? आंसर इज प्लाज्मा. एंड दैट्स द स्टोरी. स्टोरी अभी खत्म नहीं है, रुकते हैं, इंटरवल हुआ है, अभी तो बाकी है स्टोरी, अभी भी बातचीत बाकी है आरबीसी और प्लाज्मा के बीच में. अभी तो सिर्फ काम किया है प्लाज्मा में, प्लाज्मा अभी खुश है, आरबीसी मुझसे बात कर रहे हैं, ऑल दैट. ओके, अभी भी स्टोरी बाकी है, तो कल बात करेंगे इसके बारे में. थैंक यू सो मच, थैंक यू. कैसा लगा आपको ये स्टोरी? कैसा लगा ये स्टोरी आपको? अभी भी थोड़ा बाकी है, कल बात करेंगे. मैं लिख के भी देता हूं आपको, ठीक है? नाही ना, आज 9:53 झालेत आणि मुलं, नुकसान होतं मुलांचं. हे स्टोरी सुरू करतो मी काल, थोडस रिवाइज करतो ना, ते सिरियल असतात ना डेली सोप तसं. ओके, ठीक है. आज है दुल्हन तैयार, वहां पे क्या स्टोरी चल रही थी क्या? नहीं, आज शादी है. ओके, सभी को मेरी तरफ से निमंत्रण है, आमंत्रण, निमंत्रण है. सभी को फैमिली के साथ आ जाओ. आज होने वाला है शुभ मंगल. ओके ओके, आज होने वाला है शुभ मंगल. एटलीस्ट
आज शुभ मंगल हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, पर दुल्हन के घर कैसी तैयारी चल रही है ये देख लेंगे आज पीके में। वराड निकाले, वराड निकाले, ठीक है। सीवीड म्हणजे बेटा अभी, सीवीड म्हणजे अलगी, सीवीड म्हणजे अलगी। ओके, टेस्ट में कहां तक आएगा? आहेर स्वीकारला जाणार नाही। बहुत बढ़िया स्वराज, आहेर स्वीकारला जाणार नाही। टेस्ट में कब तक आएगा? टेस्ट में ये आ जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 तक आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, आणि तिकडं पीकेचं जेवढं काय होईल तेवढं। नवरदेव तयार आहे का? पण आहे ना, दोन्ही नवरदेव रेडी आहेत, ठीक आहे। टेस्टचा टॉपिक आहे, लक्षात ठेवा, दॅट इज पीके, प्लांट किंगडम अँड ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस, ठीक आहे। आणि मंडेला त्याचं डिस्कशन T&D चालतं। चला, ठीक आहे। आपली उपस्थिती प्रार्थनीय आहे, हो। जम्बो टेस्ट, आता हे टॉपिक संपतच आलाय, त्याच्यानंतर एक छोटासा टॉपिक बाकी, रेग्युलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, आणि दोनच डिसीजेस, अस्थमा आणि इम्फायसेमा, आणि मग छोटे मोठे डिसीजेस। पण हे मी एक्झॅक्ट कळालं पाहिजे, कोणी जर अस्थमाचा पेशंट असेल तर मला असं क्लिअर झालं पाहिजे की अरे ह्याच्या लंग्स मध्ये हा प्रॉब्लेम आहे। कोणी जर म्हणलं हे इम्फायसेमाचा प्रॉब्लेम आहे, तुमच्या डोक्यात फिजिओलॉजी म्हणजे पॅथॉलॉजी आली पाहिजे, अरे त्याच्या अल्व्होलाई वॉल ब्रेकडाऊन झाले। डीपीपी घेता का सर? हा, डीपीपी घेऊ ना, थांबा, वेळ आहे ना, डीपीपी घेऊया। कसा होता आजचा डीपीपी? तुम्ही दिलाय का पेपर? सर्वांनी दिलाय का पेपर? दिलाय सर्वांनी पेपर? दिलाय सर्वांनी मुलांनी? दिलाय?